रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद सर्वम और आई एम इको वॉरियर की ओर से आपको वेलकम करती हूँ और आई एम वेटिंग फॉर सम ऑफ द पीपल टू स्टिल अराइव। सो इमीडिएटली हम लोग वैसे तो अभी बस टाइम के हिसाब से शुरुआत करते हैं, तो बिफोर दैट आई एम थैंकफुल टू अवर सर्वम क्लब मेंबर तेजस्वी तरशी एंड द मैनेजिंग ट्रस्टी of the New Tulip International School for really being partnering all the time from the conceptualization stage till the execution stage for the success of this entire, I can say, Eco Sarvam Agnihotra Mahayagna. मेरी थोड़ी सी ब्रेथ फास्ट हो रही है, मैं भाग रही हूँ इधर से उधर, बट यस हमारा आज के अभी के बाद का जो टाइम है उसमें हम अपने साथ रहेंगे, अपने मन को भी शांत रखेंगे, अपने ब्रेथ को भी शांत रखेंगे और अपने आप का माइंड एंड बॉडी का अलाइनमेंट करेंगे। अवाजथी रजिस्ट्रेशन थयुं एना करता बी गीतिकाबेने जे आ काम उपाड्युं छे अने एमां भगवाननो एटलो बधो साथ छे के एवी ऊर्जा मळी अने आपणे बधा अहींया भेगा थया। तो हूँ अहींया एक बीजो वधारे टाइम नहीं बगाडूं, एक श्लोक बोली अने हूँ मारी वात पूरी करीश। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. हरि ओम. Good evening to all of you. This is Dheeraj Pujara. Precise and a small introduction is I am the trainer of the world, youngest coder of the world. And the trainer and the coder both are Indians. That's the biggest thing. And that youngest coder is also present here who does Agnihotra every day. Right? This is a very time restrictive thing, so I'll not take much of time because I'll have to hand over to Chintan sir immediately, and we all have to manage the timings. And somebody who can manage or tune in with nature, the nature always tunes with him or her. So it is about matching with the nature. So almost this yagna is about science, it's not about spirituality. That's the first thing. And if I would have been wearing a dhoti and a kurta right now, I would have been looking like a spiritual man. I am wearing a suit, so I look a professional person. That's the image created in our brain. But nowadays, dhoti kurta people also does the business and they are professional. Politicians also. Provided you have the right image in your brain. So whatever we see the world is the image we have stored. To start with the benefit of this yagna, I'll just tell you that this is the only solution to the radioactive energies of nuclear bombs or nuclear energy which we have invented, but we have no solution to protect ourselves from the nuclear energy. We have made a bomb which shows that we have power and nobody can attack. But if that bomb blasts at our place, then there is no way to escape. The only way to escape is Agnihotra. And this has been proved in an incident where the nuclear blast happened in Russia. And there is a village, a lot of people around that factory or that manufacturing unit were damaged and they died. And to the surprise notation of the army general there in Russia, they found out there was a village where most of the people survived, and all of them were doing Agnihotra. Even when we call Poland, right? Most of the people do Agnihotra there. And the only thing is, yesterday when I was doing a Jagran of Shivratri, most of the engineers were with me because they didn't knew the essence of waking up at night. But then they woke and they found out in the morning, yes, there is a scientific change in them. So sometimes when you say, I want to climb a Girnar for praying some goddess or god, it becomes a blockage for certain people to accept that. So for those people, we have a presentation that Girnar climbing is a real good adventure trip, which your son and daughter should go for. And then they develop that kind of feeling that yes, the education or something to derive from someone is a sadhana. It's a tapasya. It cannot happen in AC rooms, on bedrooms, by sleeping, studying. It cannot happen. But I'll tell you, if you do this Agnihotra at your home, right? हमारे घर में तो बहुत सारे दिमाग ठीक हो जाएंगे, लेकिन पड़ोसियों के भी दिमाग ठीक हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमारे बच्चों के परसेंटेज आते हैं तो सबसे पहले चिंता पड़ोसियों की होती है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि एक मिठाई का डब्बा हमेशा साथ में रखना, और जब भी पड़ोसी रिजल्ट पूछे तो उसको खिला देना कि आई पास्ड माय एग्जाम, राइट, आई गॉट समथिंग व्हिच आई एक्सपेक्टेड. सो दिस Agnihotra, it's a scientific process. Never ever consider it as a spiritual process and block yourself to do it. I have seen a lot of Russians, a lot of US people, a lot of hospitals in USC doing it. As well as this really benefits the nature. If you go around 3 kilometers in the horizontal boundaries, your benefit is going to be trapped by 3 kilometers around. And there is a lot of Agnihotra today. And up is approximately 12 kilometers. And if you can really give energies to 3 kilometers, if everyone starts doing it,
I believe we'll cover the Ahmedabad at least, right? Once you cover Ahmedabad, બધા ગુજરાતી તો આવી જ ગયા કહેવાય, right? And we know that most of us are settled in US, પછી US બી આવી જશે. So majorly what happens with our life today is whenever we start doing something, some hurdle comes, some obstacles comes, and the first obstacles is from the nearest and the dearest one. So never ever share your secret before you start some good journey to anyone in the world. First do it and just show it we have done it, right? Most of the time, yes, we are busy in clicking pics, photographs, right? And we forget what we are going to enjoy or what we have it in our life. So I believe, or my personal experience is, Yogesh sir is like a father to me, guru to me, because I have been reaching Yogesh sir school since long time. When I was roaming in Ahmedabad before 13 years with one of my laptop, और मेरे दिमाग में तक मैं किसको पढ़ाना चाहता हूँ. And today it's a campus of 8,000 square feet on CG Road. And yes, we have survived COVID. The business has survived COVID. So it's Agnihotra. Every day I'm doing it. Morning, evening, there is a Havan Kund at my home, Havan Kund in my Audi, Havan Kund at my office. And I don't have a reason that I should not do it. Right? Even if I have an inquiry in my office, I'll request inquiry people to come and join the Agnihotra, and then we start the inquiry. So really, if you want to do it something, there is no reason for it. And if you want to block something, there is always a lot of complaints and reasons you have. So if you are here, that means now you don't have any hurdles and obstacles. So there are ample number of benefits. Radiation is one of the benefit. You cover yourself from the mobile. See, you cannot avoid mobile, I tell you. If you say that मेरे बच्चे को मोबाइल बंद करवा दो, तो आप एक और डिसीज दे रहे हो उसको, अगर मोबाइल बंद करवाना है, राइट? He'll get anxious and he'll get psychic if you close the mobile. So मोबाइल रखते हुए भी उसको कैसे सर्वाइव करना है, उसके ऊपर एक कवच कैसे बनाना है, प्रोटेक्टिव लेयर कैसे बनाना है, वो अग्निहोत्रा आपको करके देगा. And it's nothing but a healing fire कहते हैं इसको इंग्लिश में, right? When we talk in English, we feel more comfortable कि हम लोग कर सकते हैं. तो ये healing fire is nothing but there are things in China, Japan, every places जहाँ से बहुत बड़े बड़े डिजीज फायर से हील किए गए. और ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे और थॉरली आपको लगेगा, थोड़े दिनों के बाद 21 days a biological clock gets settled, फिर शायद आपका मोबाइल बज रहा होगा तो प्रायोरिटी वो नहीं होगी, प्रायोरिटी जो आपके सामने पर्सन है वो होगी. तो ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है आज के युग में कि यार कोई किसी का इमरजेंसी, और हर कोई फ़ोन करता है ना, उसको इमरजेंसी काम होता है आजकल, राइट? तो ये इसमें से एलिमिनेट होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिससे आप कर सकते हो. देयर आर एम्पल नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स विच आई टॉक व्हेन वी डू मेडिटेशन आफ्टर द अग्निहोत्रा, बिकॉज टाइम संभालना है इसमें. जो टाइम है सपोजिंग 6:44 या 6:40, उस टाइम पे we have to give the ahuti, right? Then that is the clock time, वो pulse time है जिसमें करना ही होगा. इसलिए I stop here and call Chintan sir on stage to give you methodology to do this, to explain the process to do this. Thank you very much. तो हाउ टू परफॉर्म दिस, इसको परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे पास इसका बेसिकली ये पात्र एक होना जरूरी है. ये कॉपर का है. પછી કોઈ એમ પૂછે છે કે પંચ धातु ચાલે, આ ચાલે, એ બધું નહીં. આ कॉपर का पात्र है. ये इन्वर्टेड शेप में पिरामिड टाइप का है, ये होता है. ये मेन एक उसकी आवश्यकता है इसकी. दूसरा ये है कि काउडंग केक, इसको हम लोग उपला या अडाया भी कहते हैं, जिसको किसी ह्यूमन का टच नहीं हुआ है. जब गाय काउडंग देती है अपने आप सूखता है, वो है. या ऐसा बनाया गया हुआ भी है तो वो भी चलता है. या स्पेसिफिक इस प्रकार के केक्स जो होते हैं वो भी होते हैं, तो इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं. इसके अंदर दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स जो डालने हैं हवन में उपयोग में आते हैं वो है देसी गाय के बिलोने का घी. देसी गाय के बिलोने का घी. आई एम थैंकफुल टू दिनेश भाई. दिनेश भाई के लिए एक जबरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत प्योर क्वालिटी का आज सभी लोग कर सके उसके लिए सब लोगों के लिए उन्होंने दिया है. और अक्षत जिसको बोलते हैं चोखा,
ये अनपॉलिश्ड राइस होना चाहिए, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अनब्रोकन और अनपॉलिश्ड। करना है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के ऊपर। अच्छा, अभी कभी क्या होता है कि सूर्योदय हो रहा है, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से ये जो जल गया है वो बंद हो गई, यानी कि हवा आई और बंद हो गया, तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं। सो डोंट डू दैट। आप लोगों को पता होगा कि सूरज की किरण पृथ्वी के ऊपर आते आते कितना समय लेती है? डू नो दैट? 7 to 8 मिनट्स। कितना मिनट लगता है? 7 से 8 मिनट। तो 1-2 मिनट के लिए हमारा कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो गया तो कुछ उसके अंदर वो करने की, उत्पात मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, कौन सी दिशा में बैठना है क्या है, तो बेहतर है कि आप और आपके सामने सूरज हो। तो पूर्व दिशा में बैठिए, पूर्व दिशा में मुंह रखिए। तो पूर्व सुबह में करते हैं तो शाम को करते हैं तो पूर्व दिशा में भी चलेगा, या ईस्ट फेसिंग वेस्ट फेसिंग दोनों चल सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं बैठना है। नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठना है। अच्छा, इवनिंग में करते हो और सुबह में नहा लिया है तो चलेगा, लेकिन सुबह में एकदम से करने की जरूरत नहीं है। तो ये डूज एंड डोंट्स है। तो लेडीज जब टाइम पीरियड में है तो नहीं परफॉर्म करे तो अच्छा है। उनके घर में कोई भी एक दूसरा व्यक्ति है वो परफॉर्म करे तो चल जाता है। घर के फैमिली मेंबर्स में से कोई भी एक व्यक्ति परफॉर्म करेगा तो चलेगा, सब लोगों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इफ एनीबडी वुड लाइक टू डू आहुति देना चाहते हैं तो आहुति भी 2-3 लोग एक हवन के अंदर दे सकते हैं। यानी कि आज जितने भी लोग बैठे हैं वो लोगों के बाजू में जो भी दूसरे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग आहुति उसके अंदर दे सकेंगे। छोटी उम्र के 7-8 साल की उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। 12 किलोमीटर के रेडिएशंस में उसके वाइब्रेशंस उसके जाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी उसका बहुत सारा फायदा है। और हमारे जो आयुर्वेदा है उसके अंदर भस्म रसायन होता है। भस्म रसायन यानी कि किसी भी चीज का जो भस्म होता है वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो अग्निहोत्र होमा की जो भी भस्म होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हेल्पफुल है, प्राणियों के लिए भी है, वनस्पति के लिए भी है। तो ये सारी चीजों उसका बेनिफिट है जब हम करेंगे तब। अब जब परफॉर्म करते हैं तो मुख्य 2 चीज का ध्यान रखना है। कल ही गुरुदेव बता रहे थे शिवरात्रि के नॉलेज के सेशन में, जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो एक कर्तापन का भाव आ जाता है। आई एम डूइंग ऐसा। सो उसको छोड़ देना है, क्योंकि अग्निहोत्र होम जो है, इसे होमा बोलते हैं, होमा नहीं है, होम है। अग्निहोत्र होम जब हम करते हैं तो एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो वो ऐसे उसके अंदर क्या करना है, तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे भीतर जो भी गुण है, गुड क्वालिटीज, उसको भी सरेंडर कर देना है। गुण को जब सरेंडर कर देंगे तो क्या होगा, हमारे भीतर ईगो नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, मन शांत रहेगा। दूसरा, मैं जो है ना, वही डिप्रेशन का रूट कॉज है। तो मैं, मेरा फैमिली, मैं नहीं करना है। सारे विश्व के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, आसपास के वातावरण में सभी लोगों को फायदा दे रहे हो, तो वो कृतज्ञता के भावपूर्वक बैठना है। दूसरा कि हमारे अवगुण जो है उसको भी सरेंडर कर देना है। अभी अवगुण को सरेंडर करना यानी कि मन के भीतर कोई ग्लानि नहीं रहेगी, कोई कॉन्शियस वाइब भी नहीं रहेगा, तो मन एकदम से मुक्ति का अनुभव करेगा। एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस। अभी सब लोग इस प्रकार से करें, जमना हाथ है, दाहिने हाथ से। तो ये गौमुख मुद्रा है। तो ये गौमुख मुद्रा के अंदर जितने भी इसके अंदर जो भी चावल के जो दाने हैं वो आते हैं, वो उसको आहुति में देना है। मंत्र सुबह का क्या है, जब सुबह में परफॉर्म करते हो तो सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। फिर उसके बाद में प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। उसके बारे में समझ लेते हैं। शाम का जो मंत्र है उसके अंदर क्या होता है, अग्नये स्वाहा। जब भी हम स्वाहा बोलते हैं तब परफॉर्म इस प्रकार से करना है। ये गौ की मुद्रा के अंदर जो भी आया है उसको फिर आमाम आमाम नहीं करवाना। फिर हाथ में वो जो चावल के दाने जो चिपक गए हैं फिर उसको आमाम करके ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आपका भाव नहीं है। यदि आप देखिए
आपके सामने कोई ऐसा रोटी फेंकेगा कि खाई ले, तो आप खाओगे क्या? तो स्वाहा मीन्स यू आर गिविंग समथिंग टू डिवाइन एनर्जी, सो इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर। ऐसे आप सबका तो आई एम श्योर बॉडी रेस्पिरेशन भी बहुत रिलैक्स्ड हो गया होगा, इनहेल एंड एक्सेल भी बहुत रिलैक्स्ड हो गया होगा। बस मुझे 2 मिनट देना रिलैक्सेशन के लिए। बट बिफोर दैट हमारे साथ वंदना अग्रवाल जी जुड़े हैं, जो मैंने कहा था कि शी इज़ द स्पाउस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ RID 3054। हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। तो वेलकम भाभी जी, हमारे लिए तो आप भाभी हैं। नमस्ते जी। एंड आपके वीडियोस और पार्थवी बहन के ऑडियोज़ के साथ मैंने इतने सारे लोगों के रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं। हर कोई मुझे पूछता है कि अग्निहोत्रा है क्या, तो मैं बस ये 2 चीज़ फॉरवर्ड करती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन भी जो आपके हमारे साथ हम लोग दी न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल पेज और वही शेयर किया है रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद सर्वम पेज पे भी, तो लोग ऑनलाइन जो जुड़े हैं वहाँ पे ऑनलाइन हमारे साथ ये यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा नम्र निवेदन है वंदना भाभी जी, आप एक बार आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। आप यहाँ पे हमारे साथ टीवी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आपकी ऑडियो सबको सुनाई देंगे। थैंक यू गीतिका जी। रोटरी क्लब अहमदाबाद सर्वम प्रेसिडेंट डॉक्टर गीतिका सलूजा जी, सेक्रेटरी रचना पाड़िया जी, CA चिंतन व्यास जी, धीरे पुजारिया जी, दिनेश तुगड़िया जी, होस्ट योगेश जी एंड तेजस जी, और सभी उपस्थित साधकगण, और वर्चुअली भी आज हमारे साथ बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड अग्निहोत्रा डे पर आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमन, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं गीतिका जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि आपने सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन आज के दिन किया। आप तो वैसे ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। यू आर रियली एन एक्सीलेंट इको वॉरियर। और दूसरा धन्यवाद मैं आपको इसलिए करना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे फेवरेट प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। अग्निहोत्र से मेरा जुड़ना 20 वर्ष पहले हुआ था और तब से मैं फ्रेंड्स अग्निहोत्र लगातार कर रही हूँ। मुझे याद है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो बहुत फ्रिक्वेंटली उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ करता था, तभी मैंने अग्निहोत्र के बारे में जाना और मैंने जब अग्निहोत्र को अपनाया तो इन सब चीज़ों से मुझे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने मेरी फ्रेंड को भी अग्निहोत्र करवाया और उनके घर में उनकी जो बोरिंग से पानी आता था वो बहुत स्मेल करता था और वो पानी उनके लिए यूज़लेस था। तो जब उन्होंने अग्निहोत्र करना चालू किया और कुछ महीनों बाद उन्होंने पाया कि अब उनका वो पानी बिल्कुल ठीक हो चुका है, तब उन्हें इस बात को वो जान पाए कि शायद ये अग्निहोत्र की वजह से हुआ, क्योंकि अग्निहोत्र की भस्म वो अपने बगीचे में डाला करती थी जहाँ पर अग्निहोत्र जहाँ वो अग्निहोत्र करती थी, जहाँ उनका बोरिंग लगा हुआ था, वहाँ वो उस अग्निहोत्र की भस्म को डाला करती थी। तो जब इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमें मिले तो हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अग्निहोत्र से परिचित करवाएं और अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार का जब जब मुझे मौका मिलता है मैं अपना समय जरूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अग्निहोत्र के फ़ायदे तो अनगिनत हैं। मैं भी ध्यान, प्राणायाम, एनर्जी हीलिंग और सुदर्शन क्रिया करती हूँ और मैंने पाया है कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अग्निहोत्र के बारे में हमें चिंतन जी ने काफ़ी कुछ बताया है। एक थोड़ी सी बात मैं भी आपको बताना चाहूँगी जो कि मैंने भी अपने ज्ञान को बढ़ाया है। गौघृत और चावल के जलने से जो उत्पन्न गैसेस प्रकृति चक्र को संतुलित करने का काम करती हैं और जिस स्थान पर गौघृत से अग्निहोत्र होता है वहाँ के वातावरण में रोगजनक कीटाणु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। गौघृत में 11 एसिड, 12 धातुएं, 2 लैक्टोज और 4 गैसेस अभी तक पहचानी जा चुकी हैं। वो गैसेस हैं एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपियोलेक्टोन। आहुति के पश्चात गौघृत से जो एसिटिलीन निर्माण होता है, ये एसिटिलीन प्रखर उष्णता की ऊर्जा है जो दूषित वायु को पूरी तरह से अपने पास खींचकर उसे शुद्ध कर देती है। अग्निहोत्र के सारे फायदे एनवायरनमेंट से तो हैं ही, सर ने हमें बताया अभी। ये हमारे एनवायरनमेंट को तो हील करता ही है, हमारे मन और प्राण पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बैड थॉट्स, चिंता, असंतोष, अत्यधिक पश्चाताप, अत्यधिक उम्मीदें, इन सब से हमारा मानसिक असंतुलन के साथ साथ हमें शारीरिक बीमारियां भी घेर लेती हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर जो एनर्जी फील्ड होती है
वो इस स्ट्रेस की वजह से वो ब्रेक हो जाती है, हमारा ऑरा ब्रेक हो जाता है, हमारा ग्रे ऑरा हो जाता है। और जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो आहुति से जो सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, हमारी मानसिक शांति का जब हम अनुभव करते हैं तो ये बीमारियाँ अपने आप ठीक होने लगती हैं। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में प्रगति की प्राप्ति होती है। जब आप अग्निहोत्र के बाद मेडिटेशन करेंगे तब आप इस अनुभूति को कर पाएंगे। आप कितने रिलैक्स्ड होंगे, आप अपने अंदर अपनी हृदय की आवाज़ को सुन पाएंगे। ऐसा पाया गया है कि डिप्रेशन का व्यक्ति अगर 6 महीने वो अग्निहोत्र नहीं भी कर रहा, अगर वो अग्निहोत्र के पास ही बैठा है तो 6 महीने में वो डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ऐसे एक्सपीरियंस मैंने लोगों के सुने हैं। बीपी, इंसोम्निया, डाइजेशन सभी पर पॉजिटिव इफेक्ट्स अग्निहोत्र के देखे गए हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त मंत्रोच्चारण से जो वाइब्रेशंस होती हैं उसका हमारे सातों चक्रों पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं। मंत्र शास्त्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में सफ़ेद, लाल, पीले और नीले रंगों में विभाजित किया हुआ है संस्कृत वर्णमाला को, और हर एक रंग का चिकित्सकीय उपयोग है, ये भी हम सब जानते हैं। जैसे लाल रंग ऊष्मा प्रदान करता है, ब्लड और स्किन के लिए अच्छा है। इसी तरह हर रंग किसी न किसी व्याधि पे काम करता है। और हमारे सातों चक्रों द्वारा जब हम ये अग्निहोत्र करते हैं तो ये पूरी एनर्जी हमारे चक्रों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और हम संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करते हैं। अग्निहोत्र इज रियली अ वंडर वेपन इन अवर हैंड्स। जिस तरह धूप, हवा, सूरज, चांद, सितारों पर कोई देश, जाति, संप्रदाय दावा नहीं कर सकते, कि इसी तरह अग्निहोत्र पर भी सारी मानव जातियों का हक है। सभी धर्मों के लोग इसे अपना रहे हैं। विदेशों में भी आजकल अग्निहोत्र का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। प्राण ऊर्जा का ये विज्ञान हर घर में पहुँचे, हर इंसान के पास पहुँचे, ऐसी आशा करती हूँ। और गीतिका जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग ऑल। आज जे पर्पस हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसको एक शब्द में वर्णन करना है तो एक ही शब्द है, खुद को ऊपर ले उठाना है। खुद के साथ समाज ऊपर उठेगा। वो मंगल भावना आज गीतिका जी ने जो बेस रखा है उसके लिए एक श्लोक में अर्पण करती हूँ। और एक मेरी थॉट्स है, हम जो कुछ भी करते हैं वो समाज के लिए, तो समाज को हम अर्पण करते हैं आज की पूरी आध्यात्मिक इवनिंग। मैं एक श्लोक बोलती हूँ, सब हाथ बंद करते फिर हम चालू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। વસુદેવ કુટુંબકમની મંગલ ભાવના સાથે આપણે આજની આધ્યાત્મિક કરતા સાયન્સ શબ્દ કીધો સરે, એ સાયન્સ બેઝને ધ્યાન રાખીને સમાજને ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટિથી નિહાળીએ। सुबह का मंत्र क्या है, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ। सूर्याय स्वाहा। मरता मरता नहीं बोलना, मंत्र जब बोलते हैं तो थोड़ा सा प्रभावशाली होना चाहिए। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं नमः। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नमः। ये मंत्र जो है वो सुबह का मंत्र है। अग्नये इदं नमः। नाउ अग्नये इदं नमः में नहीं आहुति देना है, वो हाथ इधर रहेगा। फिर प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नमः। नाउ इसका अर्थ क्या है? सूर्य का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। प्रजापति का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैंने पहले क्या बोला कि एक भावना के साथ में इसको करना है। अच्छा, अभी इसके बाद वो जो अक्षत है, अक्षत के ऊपर भी थोड़ा सा घी का लेपन करना है। और आप दिया साइड में रखेंगे तो भी ठीक है। अभी नीचे तो अभी हम लोग वो दिया जला लेंगे।
होता है और गाय के घी ही केवल एक ऐसी चीज़ है कि जो जलने के बाद भी लाखों टन में ऑक्सीजन पैदा करता है। तो કોઈ બોલતા હોય કે તમે પ્રદૂષણ કરો છો, તો એવું પ્રદૂષણવાળી વાત નથી. આપણે જેટલો હવન કરીએ છીએ એટલું જ સામે ઓક્સિજનની માત્રા વધે છે, राइट। और कोई भी परफॉर्मेंस जब भी हम करते हो तो वो एकदम प्यार से कृतज्ञता के भाव के साथ करना है। इसमें मैं अभी अक्षर लेता नहीं हूँ क्योंकि अभी करना है, इसलिए सूर्याय स्वाहा ऐसे दे दिया, फिर हाथ इधर आ गए, सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। फिर उसके बाद में आपके हाथ में जो भी चावल पड़े हैं उसको अंदर नहीं डालना है, आपके पास में जो डब्बी है उसके अंदर डाल देना है। और अभी हम मंत्र कौन सा बोलेंगे? सूर्याय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः। तो अभी सब लोग एक साथ में मंत्र बोलते हैं, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। पतये इदं नमः। अग्निहोत्र होमा की जो भी ऊर्जा है वो आपको भी प्रभावित कर रही है। अग्नये स्वाहा, संकल्प लेते हैं अग्नये प्रतिदिन इसको करेंगे। जब भी आप इसमें अग्नि को यानी फायर को एनलाइट करेंगे, इट्स यू विल सी अ कॉपर में आपको ग्रीन अग्नि दिखाई देगी, थोड़ी ब्लूइश, राइट। कॉपर हैज दैट एफिशिएंट कंपोनेंट व्हिच कैन मिक्स, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। इसमें गोल्ड भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, यू कैन मेक अ गोल्ड, बट इट इज नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीवन, सो कॉपर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। मिट्टी का अभी तक अग्निहोत्र में इतना उन्होंने नहीं उल्लेख किया, लेकिन कॉपर इज अ मेन कंपोनेंट। जैसे हम इवन सन को भी वाटर देते हैं, पानी देते हैं, तो कॉपर यूज ज़्यादा करते हैं बिकॉज दैट, तो वो नहीं करते हैं। इसलिए इसको टाइम बाउंड यज्ञ कहा गया है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। अगर इंसान ब्रेकफास्ट दोपहर को खाएगा और खाना शाम को खाएगा, और अगर डिनर रात को 10 बजे लेगा, तो डेफिनेटली उसको डायबिटीज़ या हार्ट अटैक आने ही वाला है। विदाउट गैप इन द फिंगर और थाइस पे रख देना है वेरी कामली, ऐसे। इट शुड नॉट बी अबोव थाइस, ऊपर होना चाहिए। और आपकी बैक मेडिटेशन आपकी बैक से स्टार्ट होता है, मतलब हाथ यहाँ पे हाथ रखते हैं, अनहट पे हाथ रखते हैं, हार्ट पे, रिबकेज पे। क्यों? क्योंकि अनहट, राइट। तो यू टेक दिस मुद्रा, पुट इट ऑन द थाइस, क्रॉस लेग, स्पेक्स अगर पहने हैं तो निकाल देना है। अगर इन द सराउंडिंग्स, अभी कोई भी वॉइस अगर बाजू में से आती है, मैं बोलता हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए,
Because when you are receiving, you should uplift your face. That is a guru and a shishya relationship. Yes. So you will breathing from the nose. शायद नहीं भी हो, लेकिन try कर रहे हैं कि वो sound महसूस करें. Let us close your eyes. When you breathe in, experience that air which goes in. Feel that in the eyebrow, between the eyebrow. Keep your eyes closed and relaxing. Slowly rub your hands. Calmly keep that hands on the eyes. तो आप eyes पे रखते हैं and very slowly you deal with your eyes. You deal with your eyes. Slowly open the process of meditation until and unless you are successful in the first phase. First phase is sitting calmly for 15 minutes every day. And that is a peak Dhyana Mudra. That is the first stage of meditation. First phase of meditation is said to be completed. That's a real fact. And I am a teacher, I am a trainer since 20 years. And I used to get throat pains when I used to teach. And immediately I would have to take strepsils or some amount of medicines. Cow dung is a very much good material for B12 vitamin. Right? B12. And that's correct. હવન જ્યારે મહલ્લાની અંદર થાય ત્યારે એક એન્વાયરમેન્ટ શુદ્ધ થાય, સાથે મનના વિચારો શુદ્ધ થાય અને લોકો હળીમળીને રહી શકે. એટલે જે મેડિટેશન અને સાયન્સ એનું આ જે કોમ્બિનેશન છે એ આ હવન દ્વારા અને એન્વાયરમેન્ટ શુદ્ધ કરવા માટે આ એક સારામાં સારો અભિગમ હતો. आज जो इतना स्पिरिचुअलिटी अपने गेन की है, चिंतन भाई थैंक यू, एंड टुलिप स्कूल थैंक यू, गीतिका जी ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. मैं एक ज़रूर चीज़ कहना चाहूँगी कि आज जो कोविड आया है तो एक फैमिली को कनेक्ट किया है और अपने अर्वाचीन की तरफ जा रहे हैं. आज जो गीतिका जी ने किया है, हमारी परंपरा हम निभा रहे हैं. आगे आगे अभी एनवायरनमेंट को भी एकदम क्लियर करते जाएंगे, ऐसे ऐसे सोच लेके चलेंगे और गीतिका जी को भी सपोर्ट करेंगे तो मेरे को लगता है कि एनवायरनमेंट की तरह अपने और आगे बढ़ेंगे. जी मैंने भी आप सबके साथ में हवन किया, मेडिटेशन किया एंड आई वाज रियली इन ट्रांस. आप सबका साथ बहुत अच्छा लगा और खासकर इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. बहुत अच्छा नॉलेज सेशन भी हुआ. एवरीथिंग वाज नाइस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. थैंक यू भाभी, थैंक यू Thanks for inviting me. ऑलवेज. थैंक यू भाभी. आज बहुत अच्छा लगा आप लोग सब ट्यूलिप स्कूल आए. हमारे स्कूल में 4 चांद लग गए आप लोग यहाँ पे आए. आज ये परफॉर्मेंस हुआ, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, बट बहुत अच्छा लगा. बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज के बाद बहुत पॉजिटिविटी आएगी. ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे बच्चों में जाएगी, हमारे स्कूल में जाएगी और यही आगे हम बढ़ाएंगे. इस आई रियली थैंक गीतिका मैम, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब and courtesy Yogesh sir who has always been a backbone of the school and pushing and motivating us for doing all these things. Thank you so very much. तो जब आप ये दिया जलाते हो तो मैच स्टिक से जलाते हो. मैच स्टिक हैज़ लॉट ऑफ सल्फर गैसेस इन इट. तो जब भी आप दिया जलाए, ज़्यादातर काऊ घी का दिया यूज़ करो तो अच्छा है. तो अलग रूप में पहले वो दिया जलाना है और फिर वो दिया यज्ञ के पास ले जाना है. यज्ञ के पास मैच स्टिक नहीं करते क्योंकि वापस आप कुछ ले रहे हो लेकिन वापस कुछ दे भी रहे हो. सो यू नीड टू कॉम्बाइन दैट. इट्स अ वेरी माइन्यूट प्रोसेस और ये प्रोसेस लिखकर मैं आपको भेज दूंगा कुछ जो पॉइंट्स हैं, तो वी विल जस्ट पुट इट. थैंक यू. और एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है 2 साल से कि आपके कांटेक्ट में किसी को भी, किसी भी फैमिली को अग्निहोत्र सीखना है, लेकिन उसको प्रॉमिस देनी होगी कि वो अग्निहोत्र 21 डेज तक मिनिमम करेगा.
तो मैं उसके घर पे मेरा अग्निहोत्र कुंड गिफ्ट में लेके आऊँगा और उसको सिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट मैंने 2 साल से स्टार्ट किया है और वो कोई भी लोकेशन पे हो। हाँ, अगर अमेरिका हो तो फ्लाइट टिकट्स भेजनी पड़ेगी, बाकी कोई भी लोकेशन पे हो, आई कम एंड गिव दैट अग्निहोत्र कुंड एज अ गिफ्ट एंड टीच दैट टू द एंटायर फैमिली, राइट? होप आई गेट अ तथास्तु फॉर दिस. થેન્ક યુ. આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા છો આમંત્રિત તરીકે. સ્પિરિચ્યુઅલ ઇવેન્ટ છે, ગીતિકાજી કરી છે, એના માટે આપ સૌનો આભાર. ધ તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વતી તેજસભાઈ, યોગેશભાઈ, આપ સૌનો આભાર. મીડિયા કર્મીનો પણ આભાર, જે મિત્રો આવ્યા છે, ફોટોગ્રાફરનો આભાર. બાદ જે સેવકો છે યોગેશભાઈ, એમનો તો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમની બધી વ્યવસ્થાઓ અમને બહુ મદદ કરી છે. હવે પૂજારા સર નામ હતું, પૂજારા સર કઈ રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ હવન થાય છે ને, ત્યારે હું નેક્સ્ટ જ્યારે ગીતિકામાં હવન કરશે ત્યારે હું ચકમકના પથ્થર આપીશ બધાને. ચકમકના પથ્થરથી આગ જલાવવાની હોય છે. મારી પાસે કીટ પડી જ છે, પણ મારે સૌરાષ્ટ્ર નથી એટલે હું ચકમકના પથ્થર લાવ્યો નથી. અને ચકમકના પથ્થરથી આપણે આગ જલાવીશું ને હવન કરીશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ આનંદ થયો આપ પધાર્યાનો. सामने देखो फोटोग्राफ सामने सर. एक मिनट.